तिलक लगा के मिट्टी का तू बाजी आज लगा ले, ओ तिलक लगा के मिट्टी का तू बाजी आज लगा ले। तुझ में जो चिंगारी है उस शोला आज बना ले। जान लगा के खेल खिलाड़ी, ओ जान लगा के खेल खिलाड़ी, साथ हमेशा स्पोर्ट्स इंडी। शान बढ़ा तू रहे अगाड़ी, जीत की भाषा स्पोर्ट्स इंडी। स्पोर्ट्स इंडी, स्पोर्ट्स इंडी, स्पोर्ट्स इंडी, स्पोर्ट्स इंडी, स्पोर्ट्स इंडी, स्पोर्ट्स इंडी, स्पोर्ट्स इंडी। Hello and welcome. A very good evening to one and all. On behalf of the whole team of Sports Indie, that is World of Sports, this is Vineet Dev welcoming you all for this extravaganza session. Well, it is the 25th episode, so I would say it is a silver jubilee that we are celebrating today, and we have some special guests to be, greeted and to start off with this conversation. But before that, when we speak about sports, it is always encouraging. Sports that keeps you healthy, keeps your mind fresh, and this is what we always expect from everyone. Well, there are various mediums of being into the sports. There are various categories that you could initialize in your life, and then you can move on as a career in this industry. Sports is something that keeps you live, and that is what we expect from everyone. So let's welcome our guest for today. As it is always being said, like we are going on to the inside of the sports ecosystem, how it works, and how do you go about it? And if you seek a career in this industry, how do you need to get into it? So there's one of a person, a great legend, I would say. He's present with us for this live session. Let's call upon the Arjun Awardee, National President of Krida Bharati, member of AFI Selection Committee, Mr. Gopal Saini, sir. Let's join him in this session. Sports Indie presents World of Sports, episode number 25. We'll join in with Gopal Saini sir within a short while. And as I said, sports is something which is, gets together, gets each other on a single platform, and then you think about it like, yes, this is what I was expecting. It might be any sport. And through this, Meeti Group is taking that initiative along with Mrs. Supriya Badveji, that sports need to be ahead of everything else because there's something or the other that keeps you live, and that is sports. And today we have with us one of our great athletes of his time, and today also serving in this industry wholeheartedly, Mr. Gopal Saini sir, an Arjun Awardee, National President of Krida Bharati, member of AFI Selection Committee. Well, as I said, sports is something that gets you together. जहां तक स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स की वजह से जुड़े हुए हैं. और अगर इस सेशन की हम बात करें, इतने सारे एपिसोड्स हो चुके हैं. दिस इज द 25th एपिसोड दैट वी आर शोकेसिंग इन फ्रंट ऑफ यू. सो आई वेलकम ऑल आवर व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस लाइव. Gopal Saini sir is along with us. Sir, a very warm welcome. Good evening to you. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. I hope you're having a great time. सर, जैसे हम जानते हैं कि स्पोर्ट्स में जब आपका नाम लिया जाता है, तब स्पोर्ट्स जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना कि वी ब्रीथ स्पोर्ट्स, वी ईट स्पोर्ट, वी स्लीप स्पोर्ट्स, तो ये स्पोर्ट्स की दुनिया में आपका नाम उन लेजेंड्स के बीच जरूर आता है. लेकिन इस जर्नी की शुरुआत की ओर मैं बढ़ना चाहूंगा सर आपके साथ. वैसे प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा सर, आप म्यूट पे चले गए हैं. यस, करेक्ट. तो जैसे मैं कह रहा था कि हम जब स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो, जब आपकी बात करते हैं, स्टीपल चेस रन होने दीजिए, कोई रेस होने दीजिए, वहां पर एक नाम गोपाल सैनी सबको पता होता है. तो इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस तरह से हुई, कौन इंस्पिरेशन रहे आपकी जर्नी में सर, उस वहां से हम शुरुआत करना चाहेंगे. ऐसा है, मैं जब फर्स्ट ईयर में पढ़ने लगा तो मुझे क्या है, इसका दौड़ का शौक होने लगा. तो वैसे तो मेरे पिताजी अपने ज़माने के हॉकी और कबड्डी के खिलाड़ी थे, लेकिन वो इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, थोड़ा बहुत खेलते थे, लेकिन उनको खेलों में बड़ी रुचि थी. तो मैं जब फर्स्ट ईयर में आया तो हमारे कॉलेज में एक बोर्ड पे लिखा गया कि भाई जो भी खिलाड़ी कुछ बन रहे हैं, एथलेटिक्स में भाग लेना चाहता है तो अपनी ट्रायल दे दे.
तो मैं थोड़ा फिटनेस के लिए दौड़ वगैरह लगाता था और थोड़ा कुश्ती का भी मुझे शौक था, तो जैसे कुश्ती में जो दंड बैठक वगैरह जो करते हैं वो मैं करता था। तो मुझे कॉलेज वालों ने ट्रायल पे बुलाया और बुलाने के बाद में मुझे उन्होंने 100 मीटर दौड़ाई। 100 मीटर में मैं क्या है कि जो पहले का चैंपियन था लड़का उसके साथ मुझे दौड़ा। तो उसमें मैंने 100 मीटर में मैंने उस बच्चे को पीछे छोड़ दिया। पीछे छोड़ने के बाद में चूंकि मेरे में पावर थी, थोड़ा मैं दौड़ भी लगाता था, तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन के बाद में मुझे उन्होंने 5,000 और 10,000 मीटर के लिए चयनित किया। उन्होंने कहा मुझे कि भाई आपको 10,000 मीटर में जो ट्रैक के 25 राउंड लगाने हैं। तो फिर मैं कुछ मेरे को वहाँ जाने के लिए करीब 1 डेढ़ महीने का टाइम था, और मैंने थोड़ा अभ्यास किया और फिर मुझे 5,000 10,000 मीटर में वो ले गए इंटर कॉलेज खिलाने के लिए। जी वहाँ मैं दोनों इवेंट में फर्स्ट आया और मुझे इंटर यूनिवर्सिटी के लिए ले गए। फिर मुझे मेरे पास 2-3 महीने का करीब 2 महीने का टाइम वो था इंटर यूनिवर्सिटी में। फिर मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद में हम कालीकट गए और वहाँ मेरा फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडल आता आता बच गया। मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, मुझे टेक्निक वगैरह नहीं था, कैसे दौड़ते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो मैं नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मुझे वहाँ 4th प्लेस मिली और मैं 4th प्लेस में भी अपना आपको क्या है काफी गौरवान्वित महसूस करने लगा कि मैं इंटर यूनिवर्सिटी में 4th। फिर मैं जब जयपुर में आया, जब मेरा नेटिव प्लेस जयपुर है, वहाँ आया तो मुझे कुछ लोगों ने कहा भाई ऐसे ऐसे एक जयपुर का गोपाल सैनी इंटर यूनिवर्सिटी में 4th आया। तो मुझे स्टेडियम से, मैं घर पे प्रैक्टिस कर रहा था, तो मुझे स्टेडियम से कुछ कोच लेने आए और उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई आप स्टेडियम में आया करिए, हम आपको कोचिंग देंगे। वो कोचिंग के लिए मुझे वो सेकंड डे से मैं वहाँ जाने लगा और फिर मुझे उन्होंने थोड़ा तैयारी करवाई। करीब 1 महीने बाद में मुझे वो स्टेट चैंपियनशिप में ले गए। तो वहाँ मेरे को उन्होंने अंडर 19 में 3000 मीटर और मेन ग्रुप में मुझे 5,000 मीटर दौड़ाई। तो मैंने अंडर 19 में 3,000 मीटर में करीब 25 साल पुराना हमारा स्टेट रिकॉर्ड था, वो मैंने तोड़ा और 5,000 में भी मैं फर्स्ट आया। फिर मुझे वो करीब 15 दिन बाद में हैदराबाद नेशनल के लिए लेके गए और वहाँ मेरे को अंडर 19 में 3000 मीटर फ्लैट और 1500 मीटर स्टीपल चेज करवाई। उन दोनों इवेंट को मैंने जीता और वहाँ नेशनल रिकॉर्ड बनाया। तो अभी भी वो नेशनल रिकॉर्ड शायद अंडर 19 का मेरे नाम से चल रहा है। तो इस तरह से मेरा ये जो खेल की जर्नी है वो एक इस तरह से चालू हुई। फिर बाद में मुझे इंडिया कैंप में बुला ले लिया और फिर मैं तेहरान चला गया। तेहरान जाने के बाद में भी वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम 5,000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। फिर आगे गाड़ी बढ़ती चली गई। ओलंपिक में गए, एशियाड में गए, 4-4 वहाँ जो भी अभी ये किया फिर हम करते रहे। तो मेरी जो एथलेटिक्स की जर्नी है वो करीब फर्स्ट ईयर में जब मैं था जब से चालू। नहीं मतलब कहते हैं ना कि 14 मिनट जो थे, जो 5000 मीटर की अगर हम बात करें, वो 14 मिनट आपकी जिंदगी को एक टर्न अराउंड देने वाले रहे हैं, जो हम सब बिल्कुल। जानते हैं। तो वो उस वक्त, उस दौड़ के वक्त क्या चल रहा था दिमाग में, क्योंकि आज भी वो रिकॉर्ड सबको यादगार है। और देखिए मैं बताऊं कि मेरे पहले हिंदुस्तान में ये था कि भी 14 मिनट 10 सेकंड के नीचे कोई भी हिंदुस्तानी खिलाड़ी 5,000 मीटर नहीं दौड़ेगा। और 8 मिनट 46 सेकंड जो स्टीपल चेज में नेशनल रिकॉर्ड था, वो वही इसके नीचे कोई आज तक करेगा नहीं। ये बड़े अच्छे टाइमिंग है। लेकिन जब पटियाला हमारी ट्रायल हुई, पटियाला ट्रायल में ये 81 की मैं बात बता रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट डे 5,000 मीटर 13 मिनट 57 सेकंड में, मतलब 13 मिनट 57 सेकंड में मैं दौड़ गया। तो वहाँ जितने भी हमारे कोच थे, जो भी टेक्निकल ऑफिसर्स आए हुए थे एफआई से, सारे उन्होंने देख के देखा यार ये ऐसा कैसे हो गया, टाइम को घड़ी में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। तो सबने वो घड़ियां वड़ियां मिलाई, लेकिन वो मेरा रियल में टाइम है 30 मिनट 57। सेकेंड डे मेरे को 3000 मीटर स्टीपल चेज करना था, उसमें भी मैंने 8 मिनट 40 सेकंड का जो रिकॉर्ड था उसको बेटर करके 8 मिनट 37 सेकंड में मैं मतलब 9 सेकंड में नेशनल रिकॉर्ड से बढ़िया आया। तो उस दिन के बाद में सबको ये लग गया कि वाकई में मैं बहुत अच्छा हूँ। और अब एशियन ट्रैक एंड फील्ड में जो टोक्यो जाना है, करीब 15 दिन बाद में हमें जाना था, तो उनको सबको ये हो गया कि ये 2 गोल्ड मेडल वहाँ जीतेगा इंडिया के लिए। और इस तरह से ये जब मैं टाइमिंग देखता हूँ तो कई बार, क्योंकि अभी हिस्ट्री में लिखा जाता है कि भी फर्स्ट इंडियन कौन है जो 14 मिनट के नीचे 5000 मीटर दौड़ा और 8 मिनट 46 सेकंड के नीचे स्टीपल चेज दौड़ा। तो जब इतिहास में लिखा जाता है तो आदमी को थोड़ा अच्छा तो लगता है कि यार कि मैं भी एक एथलेटिक जगत का इतिहास पुरुष रहा हूँ।
अब चाहे मेरा अभी स्टीपल चेज में रिकॉर्ड अभी मेरा करीब 6 महीने पहले ही टूटा है, करीब 40 साल तक ये रिकॉर्ड रहा, और 5000 मीटर का करीब 10-12 साल पहले टूट चुका है। लेकिन फिर भी क्या है कि इतिहास में लिखा जाएगा कि फर्स्ट इंडियन कौन था जो 14 मिनट के नीचे 5000 दौड़ा और 8 मिनट 46 सेकंड के नीचे स्टीपल चेज दौड़ा। तो बड़ा अच्छा लगता है आदमी को जब वो मेहनत करता है और थोड़ा इतिहास पुरुष बनता है, तो उसके मन में होता है कि वाकई में मैंने मेहनत की है जिसका मुझे फल भगवान ने दिया है। बिल्कुल सही बात कही ना सर। जैसे कहा जाता है ना कि सुनहरे अक्षरों से लिखा जाना या इतिहास में उसकी एक बात झलकना बहुत बड़ी बात होती है। और जब इतने सारे रिकॉर्ड्स आपके नाम है और उसी बीच 40 साल के बाद, जैसे आपने कहा 40 साल के बाद ये रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन हमेशा ये यादगार रहता है कि पहले कौन था। तो पहले गोपाल सैनी सर थे जिनका नाम दर्ज है। वो हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात होती है सर। लेकिन अगर आज के दौर की अगर हम बात करें, अगर जिस तरह से आप उस वक्त सारी चीजें देख रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, और उस वक्त ये नई थी चीजें, सभी के लिए नई थी ये चीजें। आजकल के दौर में सारी चीजें थोड़ी बहुत सहूलियत के हिसाब से हो गई है, सबको पता है अब क्या करना है, किस तरह से ट्रेनिंग करनी है, किस तरह से मैनेजमेंट संभालनी है पूरी। तो आप कैसे देखते हो इन अपॉर्चुनिटीज को जो आज के दौर में जिन लड़कों को या जिन एथलीट्स को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप उसके बारे में सर? देखिए, मैं बताऊं, अभी तो मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे टाइम में आज के टाइम में जमीन आसमान का अंतर है। जब हम मास्को ओलंपिक 1980 में जा गए थे, तो उस टाइम का जब नेशनल कैंप में हमारी डाइट मिलती थी वो करीब 50 रुपए की मिलती थी। उसमें करीब हमें क्या है कि 2 पीस पनीर के पीस मिलते थे, थोड़ा सा ग्रेवी मिलता था हमें जो रिच डाइट में। अगर कोई नॉन वेज है तो उसको 2 पीस मटन के और थोड़ा सा ग्रेवी मिलता था, और बाकी हमें कोई सप्लीमेंट वगैरह या फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट या जूस वगैरह कुछ नहीं मिलता था, खाली भोजन और वो एक्स्ट्रा डाइट में हमें वो मिलता था। ये 1980s की बात बता रहा हूँ। उस टाइम पे हमारे लिए न कोई इंटरनेशनल कोचेस थे, न कोई इतना बहुत ज़्यादा साधन थे। पहले सिंथेटिक ट्रैक भी हमारे लिए नहीं था। ये तो 82 में जब हमारे यहाँ दिल्ली एशियाड हुआ, इसके बाद में हमें सिंथेटिक ट्रैक मिला। वरना तो हम लोग जब भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में जाते थे, तो पटियाला हम लोगों का कैंप लगता था, तो वहाँ पे सिंडर ट्रैक होता था और हमारे यहाँ के कोचेज ही हमें ट्रेनिंग करवाते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बहुत कुछ फैसिलिटीज दी है। अब आजकल फिजियोथेरेपिस्ट अलग होता है। पहले जैसे हम लोगों के पास दौड़ने के लिए स्पाइक्स भी नहीं थे, नहीं मिलते थे, लेकिन अब तो गवर्नमेंट क्या है कि टॉप से टॉप एपरेटस हमारे खिलाड़ियों को देते हैं, कोचिंग देते हैं, डाइट के ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं और एक एक खिलाड़ी की मॉनिटरिंग करने लगे। तो इस मॉनिटरिंग से आपने देखा होगा अभी हमारे जो एथलेटिक्स में जो ये था कि ओलंपिक में मेडल लेना बहुत कठिन काम है। हमारी नीरज चोपड़ा ने ये जो कठिन काम है उसको क्या है कि पूरा किया है, ठीक है। इसके साथ में थोड़ा सा कमलप्रीत भी थोड़ा सा अगर और थोड़ा सा सिंसियर होती, उसका थ्रो निकल जाता, तो हमारे डिस्कस थ्रो में भी भारत को कोई ना कोई मेडल मिल जाता। तो अब हमारे देश में क्या है कि मेडल्स की शुरुआत हो गई है भगवान की कृपा से, और हमारी जो राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत सरकार है उनकी प्लानिंग की वजह से ये सब कुछ होने लगा है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि नीरज चोपड़ा पे भी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ खर्चा किया, करीब 7.5 करोड़ रुपया उस खिलाड़ी पे तैयार किया है। पीवी सिंधु पे जैसे 4 करोड़ रुपया कोचिंग पे और अन्य एपरेटस वगैरह पे, कोचेज पे इनके ऊपर किया है, विदेशों में ट्रेनिंग करवाई है। तो इसका क्या है कि इंटरनेशनल कंपटीशन जब आप लड़ते हैं तो इस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल। आपको एक्सपोजर मिलता है। आप अपने से बराबर के खिलाड़ियों में या अपने से अच्छे खिलाड़ियों में ट्रेनिंग करते हैं, तो व्यक्ति को ये पता चलता है कि मेरे में कितना दमखम है और इन खिलाड़ियों से मैं कितना आगे हूँ या कितने पीछे हूँ। तो इससे वो अपनी उस हिसाब से प्लानिंग करता है। तो ये सब चीजें क्या है कि अब काफी फर्क पड़ा है हमारे पहले के टाइम में, आपके टाइम में, ये मैंने देखा। मतलब जैसे सर आपने बताया कि ये सारी चीजें शायद किसी को पता नहीं होती कि उस प्लेयर के पीछे जब वो मेहनत कर रहा है तो कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, या यूं कहें हम कि कितनी मेहनत ली जा रही है, जो कोचेस उनके पीछे ट्रेनिंग में लगते हैं या जो उनको डाइट दिया जाता है, ये सारी चीजें हैं ही। लेकिन आजकल के दौर में जितने यंगस्टर्स हैं या यूं कहें एस्पायरिंग जो एथलीट्स हैं, वो किस तरह से चुने कि मुझे इस फील्ड में करियर एज अ करियर मुझे चुनना चाहिए। फिर वो एथलीट एज एन एथलीट कोई भी फील्ड क्यों ना हो, वो किस तरह से चुने इस फील्ड को?
कि देखिए मुझे मैं जैवलिन आपको थ्रो बताऊं, थ्रो करना है या स्टीपल चेस रन में पार्टिसिपेट करना है, कैसे चुने? हाँ देखिए मैं अब आपको बताऊं कि अब तो जैसे किसी भी, पहले तो पेरेंट्स ये देखते थे कि यार हमारा बच्चा अगर खेल में जाएगा तो इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो मैं आज के आपके इस माध्यम से सभी अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई अब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डालिए। अब आपका जो भी बच्चा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो स्पोर्ट्स में अपना करियर बना सकता है और बहुत हाई लेवल का करियर बना सकता है। अब वो पहले वाला टाइम नहीं। अब अगर जैसे कोई अच्छा खिलाड़ी होता है तो गवर्नमेंट उसको करोड़ों रुपए आजकल इनाम में देती है। उसको क्या है, स्पोर्ट्स बेस पे अलग से कैटेगरीज बनी हुई है, अच्छी अच्छी जॉब स्पोर्ट्स बेस पे मिलती है। तो इसलिए हमें अब बच्चों के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए और बच्चों को क्या है कि अब स्पोर्ट्स फील्ड में डालना चाहिए और उनको एक एज ए स्पोर्ट्स करियर भी हम स्पोर्ट्स को चूज कर सकते हैं। अब आपने कहा कि बच्चे को कैसे डिसाइड करना चाहता है, चेक करेगा वो कि भाई मैं किस खेल में फिट हूँ। जैसे सबसे करेक्ट। पहले हम एथलेटिक्स में हमने, तो एथलेटिक्स में क्या है कि जैसे आज जैसे मैं हूँ, मेरी हाइट मैं मीडियम साइज का हूँ। तो अगर मैं जैसे लॉन्ग जंप करना चाहता या हाई जंप करना चाहता या हर्डल करना चाहता तो मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। या जैसे मैं थ्रोज करना चाहता तो वो भी मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। तो मैंने मेरी जो कद काठी है इसके हिसाब से मैंने लॉन्ग मिडल डिस्टेंस को चुना। तो लॉन्ग मिडल डिस्टेंस में क्या है कि हाइट का इतना बड़ा रोल नहीं रहता है, ये सारा कार्डिक होता है। आपका इंड्योरेंस के लेवल कितना है, आपका हार्ट की, आपका फिजियोलॉजिकल सिस्टम कितना मजबूत है, उसके हिसाब से मेरे लिए ये इवेंट बिल्कुल फिट बैठे और मैंने इन इवेंट में तरक्की। लेकिन अगर मैं उसी टाइम पे अगर मैं हाई जंप करता और हाई जंप में मैं प्रैक्टिस करता रहता तो मैं, हो सकता था एथलीट तो बन जाता, नेशनल लेवल तक मैं चला भी जाता, लेकिन मैं इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए मैं करेक्ट। यही कहना, हाँ तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जो कद काठी है, आपके शरीर की जो बनावट है, आपकी जो हाइट है, इसके हिसाब से आपको खेल को चूज करना चाहिए। अब जैसे बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, इसमें जिन बच्चों की हाइट अच्छी है या हमारे हर्डल है, 400 मीटर हर्डल है, हाई जंप है, तो इनमें जिन बच्चों की हाइट अच्छी है, टांगे लंबी हैं, तो वो बच्चे इसमें जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसलिए हमें जब भी कोई इवेंट हम डिसाइड करें तो अपने जो भी एक्सपर्ट है या अपने पुराने सीनियर्स हैं, इनसे राय मशवरा करके ही हमें अपने अपने फील्ड में डालना चाहिए। बाकी विदेशों में तो आजकल क्या है कि लेबोरेटरीज है, लेबोरेटरीज में चेक करते हैं कि बच्चे का मसल फाइबर कैसा है। उसके हिसाब से वो क्या है कि भाई इसका मसल्स लिगामेंट अगर हैवी है तो उनको क्या वेट लिफ्टिंग में डालते हैं, थ्रोज में डालते हैं। जिनकी कार्डिक मसल्स पावरफुल होती है उसको क्या है वो लॉन्ग मिडल डिस्टेंस में डालते हैं। तो वहाँ तो बड़ा अच्छा रिसर्च वर्क चल रहा है, अब हमारे यहाँ भी वो होना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे कुछ साल तो बेचारे इस काम में टाइम खराब कर देते हैं कि मैं किस इवेंट में फिट होऊंगा। 2-4 साल करेक्ट। तो ऐसे ही लगती है, उनका पीक जो है ऐसे ही चला जाता है। अगर इनिशियल स्टेज में बच्चे को आते ही पता चल जाए कि आप इस चीज के लिए सही है, तो बच्चा उसी लाइन पे जाएगा और उसका करीब 3-4 साल बच जाएगा और हमें हमारे देश के लिए थोड़ा जल्दी रिजल्ट आने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सही बात कही ना सर। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सारे कंट्रीज में हम देखते हैं कि बच्चों को मतलब बचपन से ही, मतलब वो 3 या 4 साल की उम्र हो, 5 साल की उम्र हो, तब जाके उनको एथलेटिक्स की शिक्षा देना शुरू कर देते हैं या उन्हें किसी स्पोर्ट्स में इंक्लूड कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे आमतौर पे नज़र नहीं आता। यहाँ पे बस स्कूल की पढ़ाई करें, स्कूल में कितने नंबर लाएं, कितने मार्क्स लाएं, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं हमारे यहाँ पे। तो जब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं एज ए करियर, तब आप क्या राय देंगे अपनी कि किस तरह से पेरेंट्स को स्पेशली देखना चाहिए अपने बच्चे को एज ए करियर के जरिए से कि इस फील्ड में हम किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं? देखिए मैं बताऊं कि पहले आजकल क्या है, स्पोर्ट्स भी बहुत साइंटिफिक हो गया है। अभी पहले जैसी चीजें नहीं रही हैं कि जैसे पहले आपने देखा होगा हम कुश्ती देखते थे, तो कुश्ती में क्या है कि मिट्टी में वो अखाड़े में पहलवान लड़ता रहता था, बड़ा स्लो मोशन में लड़ाई करता था। लेकिन आजकल कुश्ती भी आपने देखा होगा मैट पे होने लगी है। तो इस कुश्ती में वही खिलाड़ी सक्सेसफुल हो पाता है जिसमें क्या है कि स्पीड भी हो, इंड्योरेंस भी हो और स्ट्रेंथ भी हो। और स्पीड इंड्योरेंस का बहुत बड़ा रोल रहता है और स्ट्रेंथ का। तो अब जैसे पहलवान को भी उस हिसाब से कोचिंग दी जाती है कि वो अपना दाव बड़ी फास्ट तरीके से लगाए और उस दाव को जल्दी अपने अपोनेंट के दाव को काट करे। तो इसलिए इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है।
तो इसलिए अब क्या आजकल बच्चों को जब भी वो कोई काम करे तो उनको पेरेंट्स को क्या है कि उसको सहयोग करना चाहिए और उसको अच्छे एक्सपर्ट के पास लेके जाना चाहिए, जिससे कि वो गलत तरीके से ट्रेनिंग ले। और जैसे एक बार किसी भी खिलाड़ी ने अगर गलत तरीके से ट्रेनिंग ले ली और अगर वो स्टिफ हो गया, ओवरलोडेड वो अगर हो गया, तो फिर इसके बाद में उसको सुधारना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। जैसे आपने एक देखा होगा बीच में एक बुधिया था जो कि करीब 10-11 साल का था और वो 65 किलोमीटर तक 65 किलोमीटर तक उसकी कोच ने उसको दौड़ा। अब उस अब वो बुधिया आपने देखा होगा कि हो रहा था कि पता नहीं ये क्या कर देगा, वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा। बुधिया अब कहीं भी नजर नहीं आया और एक करेक्ट। स्पोर्ट्समैन के बच्चे की जिंदगी खराब हो गई। तो इसलिए किसी भी साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग होना चाहिए और अच्छे कोच के पास बच्चे को लेके जाना चाहिए और जो भी सुविधाएं बच्चे को चाहिए उसको सहयोग करना चाहिए पेरेंट्स को। क्योंकि अब पेरेंट्स को ये नहीं देखना चाहिए कि भाई मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस ऑफिसर ही बने या आईपीएस ऑफिसर बने। अब उसको क्या है कि जैसे उन चीजों के लिए वो कोचिंग में बच्चे को लेके जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे ट्यूटर के पास ले जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में लेके जाते हैं, इसी तरह से बच्चे का स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने के लिए पेरेंट्स को क्या है अच्छे कोचेस के पास ले जाना चाहिए, अच्छे स्टेडियम में ले जाना चाहिए और उसको जो अच्छी अच्छी कोचिंग और खुराक और उसको साइंटिफिक तरीके से सब कुछ मिलना चाहिए। तो इससे क्या बच्चा आगे बढ़ेगा और पेरेंट्स का तो नाम होगा ही होगा, उसका कैरियर भी बनेगा, साथ में हमारे कंट्री को मेडल भी मिलेंगे, जिससे हमारे कंट्री का विदेशों में नाम रोशन। बिल्कुल सर, आपने मेडल्स की बात की, रिकॉग्निशन की बात हम करते हैं कि अब जाकर ओलंपिक जैसे एक ऐसे लेवल पर मेडल्स आने शुरू हो गए हैं। जब पहली बार आपके गले में वो मेडल पहनाया गया था, जब आपकी जीत हुई थी और उसके बाद जब ये सिलसिला कंटिन्यूअस स्टेज तक, यानी मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 76 से लेकर 88 तक, जो 12 साल बीच में रहे हैं, एक पीक टाइम रहा है आपके लिए। और उसी बीच जितने रिकॉर्ड्स आपने तोड़े हैं, नए रिकॉर्ड्स आपने साबित किए हैं, बहुत सारे मेडल्स जब आपके गले में आए हैं, रिकॉग्निशन मिला, कैसा लगता था उस वक्त और आज उन मेडल्स को देखकर कैसे लगता है? आपको बताऊं कि जब भी कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है तो कोई भी अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके प्रैक्टिस करता है। जैसे मैंने भी जब प्रैक्टिस की थी चालू 75 में जब मैंने चालू किया तो ये मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कंट्री को रिप्रेजेंट करना है और जाकर इंटरनेशनल लेवल पे मेडल दिलाकर हमारे देश को गौरवान्वित महसूस करवाना है, गौरव दिलाना है। तो जब आदमी प्रैक्टिस करता है और ये इतने सारे मेडल वो अगर जीतता है और मेडल जीतने के बाद में उनको देखता है, फिर विक्ट्री स्टेज पे वो चढ़ता है और फिर हमारे देश का झंडा ऊपर जाता है, राष्ट्रीय गीत उसमें बजता रहता है, तो फिर क्या है कि आदमी को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया है, जो मैंने मेहनत की है उसको वो लगता है कि मुझे मेहनत का फल मिलने लगा। तो अब मैं जब ये मेडल देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई में मैंने कुछ किया है हिंदुस्तान के लिए और बड़ा अच्छा लगता है। और अब आज जो बच्चे मेडल लेते हैं तो इनको भी देखते हैं तो हमारे जो पुरानी आज के 40 साल पहले की जो यादें हैं वो ताजा हो जाती हैं और फिर हम क्या है कि वो पुरानी यादों में खो जाते हैं। लेकिन इस तरह का सिलसिला चलते ही रहना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारे देश में क्या मेडल की जो एक पहले ये ऑब्स्टिकल लग रहा था कि भाई हम कोई मेडल लेंगे ही नहीं, अब वो देखो अब वो ऑब्स्टिकल खत्म हो गया है और अब हम ओलंपिक में भी मेडल लेने लगे। तो इसलिए अब इन मेडलों से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, यूथ को प्रेरणा लेनी चाहिए और जैसे पहले हम लोगों को आइकॉन मानकर बच्चे प्रैक्टिस करते थे, अब जैसे नीरज चोपड़ा को, कमलप्रीत को आइकॉन मानकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि हमारे देश को ज्यादा से ज्यादा मेडल मिल सके और देश का गौरव इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ सके। तो मैं तो बड़ा अच्छा लगता है इन चीजों को देख। सही है सर। वैसे होता ये है ना कि हम मैं मतलब अगर आपकी बात करूं, एक यंग एज में इतनी सारी अचीवमेंट्स पा लेना, फिर उसके बाद नए बच्चों को सिखाना, ट्रेनिंग देना, उन्हें ग्रूमिंग करना कि किस तरह से हमें इस स्पोर्ट्स को एज ए करियर के जरिए देखना चाहिए, ये सारी चीजें आपके जरिए होती आई हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो आपकी स्टोरी से इंस्पायर हुए हैं कि हमें भी गोपाल सर जैसा बनना है, हमें भी वो अर्जुन अवार्ड मिलना चाहिए या उसके ऊपर भी कुछ अवार्ड्स हो तो वो मिलने चाहिए। क्रीड़ा भारती के जरिए अगर हम बात करें, मैं क्रीड़ा भारती की ओर बढ़ना चाहूंगा। किस तरह से कामकाज चलता है क्रीड़ा भारती का, किस तरह से प्रोसेस होता है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
देखिए, ये क्रीड़ा भारती जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ये बिल्कुल एक सामाजिक संगठन है, नॉन पॉलिटिकल संगठन है। हमारा उद्देश्य इस संगठन के द्वारा यही है कि यूथ को हम खेलों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें। तो हम लोग साल भर में 5 प्रोग्राम करवाते रहते हैं। जैसे सूर्य सप्तमी के दिन हम सूर्य नमस्कार करवाते हैं। सूर्य नमस्कार क्या है कि इसमें करीब 12 क्रियाएँ होती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर 10-12 सूर्य नमस्कार रोजाना अपने घर की छत पर या बाहर या कमरे में कर ले, तो एक तरह से एक फिटनेस के लिए एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। तो हर भारतीय को सूर्य नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि आजकल की देखा होगा आपने जीवन बड़ा फास्ट हो गया लोगों का, इसलिए बिल्कुल। अपने जीवन उनमें अपने जीवन के लिए, अपने फिटनेस के लिए उनके पास समय नहीं है। लेकिन वो सूर्य नमस्कार के द्वारा अपने आप को फिट कर सकते हैं। तो एक तो हम ये आयोजन हर साल सूर्य सप्तमी को करते हैं पूरे भारतवर्ष में। एक ही दिन में हम करीब करोड़ों व्यक्तियों को ये करवाते हैं। हमारा जो संगठन है इसके हर आदमी मिलकर और उसको अपनी-अपनी जगह पे हम इसको करवाते हैं। दूसरा क्या है कि हम 29 अगस्त को क्या है ध्यानचंद जी का जन्मदिन मनाते हैं। उससे क्या है कि वो ध्यानचंद जी के जन्मदिन को उनकी प्रेरणा से वो उनको यूथ को एक संदेश देना चाहते हैं कि जो ध्यानचंद जी में जो राष्ट्रभक्ति थी, खेल के प्रति जो समर्पण था, उसको लेके हम उस दिन हम खेलों के आयोजन पूरे हिंदुस्तान में करवाते हैं। जो खेल जैसा प्रचलित है, जैसे कहीं हॉकी, कहीं एथलेटिक्स, कहीं बास्केटबॉल, कहीं फुटबॉल, कहीं कबड्डी, ये मतलब अलग-अलग खेल हम पूरे हिंदुस्तान में करवाते हैं, जिससे कि यूथ को ध्यानचंद जी से प्रेरणा मिलके और वो खेलों की ओर बढ़े। एक हम क्या है कि खेल परीक्षा करवाते हैं। पहले तो हम वैसे ही करवाते थे बैठा के बच्चों को, लेकिन आजकल कोविड के चक्कर में वर्चुअली हम करवा रहे हैं। उसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देते हैं जो बच्चे कर पाते हैं, कुछ ऐसे कठिन देते हैं जो बच्चे अपने पेरेंट्स को पूछते हैं। तो इससे क्या उनमें खेलों के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने के लिए हम ये इस तरह का आयोजन करवाते हैं। एक हम क्या है कि खिलाड़ियों की माताओं को हम जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनको जीजाबाई पुरस्कार देते हैं। मैं आपको बताऊं कि खिलाड़ी को बनाने में सबसे बड़ा रोल जो है वो उसकी माता जी का माँ का होता है। क्योंकि माँ ही उसको खुराक का ध्यान रखती है। माँ ही अगर वो प्रैक्टिस पे नहीं जाता है तो उसको प्रेरित करती है, भाई तू आज प्रैक्टिस पे क्यों नहीं जा रहा। तो एक खिलाड़ी को बनाने में माँ का रोल होता है। तो खिलाड़ी को तो बहुत मान सम्मान मिलता है, लेकिन बेचारी जो उसके पीछे बैकग्राउंड में माँ रहती है उसको कोई भी सम्मानित नहीं करता। वैसे वैसे तो सर हम सर सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको। जब आपने अभी बात की है कि माताजी की बात की कि जब बेटा बड़ा होता है तब माताजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जिस तरह से हम स्पोर्ट्स इंडी के ज़रिए जुड़े हुए हैं, तो कहते हैं ना ये एक बच्चा जिनका है ना? ये सपूत हाँ, जिनका, वो सुप्रिया जी हाँ, हमारे हाँ, साथ पे मौजूद हैं। तो मैं सुप्रिया जी को हाँ। प्लीज़ करना चाहूँगा कि सुप्रिया जी प्लीज़ हमारे साथ जुड़ें इस सेशन के ज़रिए। प्रिया जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर, आप नमस्कार। ये यस, बहुत मतलब बच्चों को प्रेरित करने के लिए आप ये बहुत अच्छा आयोजन करवा रही हैं कि जब बच्चे किसी भी खिलाड़ी को सुनेंगे, देखेंगे, तो उनमें क्या खेलों के लिए बहुत अच्छी भावना प्रकट होगी और वो खेलों के लिए बढ़ेंगे और एक दिन हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत हृदय से आभार और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो भावनाएँ हैं खिलाड़ियों के लिए, वो यूथ के लिए इसी तरह से बनी रहेगी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Ma'am, So, we were just discussing about Krida Bharati, how the process goes, and what are the things that undertaken under this one shelter named as Krida Bharati. yeah. How do you think institutions like Krida Bharati helps a sports person in his journey basically? How do you see to it? First of all, sorry I couldn't join earlier because I was in mid of one's program. So, and welcome to Gopal Saini sir on behalf of Sports Indy, and thanks to you for just sharing this question with me. So, I feel Krida Bharati is doing lot of work for all emerging players across India, and uh, for say developing a person in a sports arena, it requires lot of patience, dedication, and support, motivation. If means up till now there was some different picture in India
as a sports pursuing as a career, because academics has been given a lot of importance in our families. But with such institutions like Krida Bharati, the picture is changing now. Parents are just they think that sports can be taken as can be selected as a career, and children or their son or daughter can pursue sports as a career, can do better for herself, himself, or maybe for the society, and of course at the end for the nation. So yes, they are contributing at a large they have large network across India, and good skills programming has been provided by Krida Bharati. They are arranging many sports, so lot many opportunities has been created by them. Absolutely, there is major contribution by Krida Bharati for sports and for coming generation to motivate them and inspire them. Yes. Absolutely. As you said, like, you were saying about the sports ecosystem that we are talking about at this moment. And this is the Yeah. 25th episode. The journey still Yeah. goes on with many, many more people. Like, according to you, what role does, these kind of institutions play in building that ecosystem? What do you feel about that? Yeah, earlier the picture related to sports was just confined to sports player, but as sports is coming with some glamorous events like Pro Kabaddi and IPL. I think lot many other services are also get involved in this organizations, like sports journalism is there, then mentor, coach. Nutritionist, physiotherapist, sports medicine. So, lot many factors are working as a sports ecosystem for this such good events which has been organized at national level. Of course, the institutions like Krida Bharati and other institutions which are organizing good sports event. So all these factors are getting involved, and they are getting some kind of employment. They are getting some opportunities to develop themselves. So with such with such events at national level or international level, when sports is growing at such a large level, I think the sports ecosystem can play very much a great role, and institution can give them employment as a regular assignment to them, and they also grow in their career. Absolutely, ma'am. And as we are saying about Krida Bharati, and as we had some good session with Gopal sir, बस इतना ही पूछना चाहूंगा आपसे कि जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे एस्पायरिंग एथलीट्स हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे सर कि किस तरह से करियर बनाएं और इस स्पोर्ट्स को किस तरह से मायने रखते हैं उनकी जिंदगी में? देखिए, मैं यूथ को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे दिमाग में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें इससे क्या मिलने वाला है, ठीक है ना? हमारे दिमाग में खाली एक ही बात होती थी कि हमें हमारे राष्ट्र के लिए एक मेडल जीत के लाना है, और हमें कुछ भी नहीं होता था कि हमें क्या अवार्ड मिलेगा, अर्जुन अवार्ड मिलेगा, पद्मश्री मिलेगी या पैसा मिलेगा या नौकरी मिलेगी, कुछ नहीं। बस दिमाग में एक ही जुनून होता था कि हमें खेलना है और हमारे देश को मेडल दिलाना है। तो मैं आज हमारे जो यूथ है उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनमें जब भी स्पोर्ट्स करें तो सबसे पहले राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति सर पे मतलब टॉप प्रायोरिटी उनका देश रहना चाहिए। उनको कभी भी अपने फ्यूचर के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं स्पोर्ट्स करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे क्या पैसा मिलने वाला है, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको भूल जाना चाहिए। भाई जो भी ये जो करियर है स्पोर्ट्स को बिल्कुल देश के प्रति, आप जैसे ध्यानचंद जी का आपने सुना होगा, ध्यानचंद जी को जब पूछा कि जर्मनी में हिटलर ने कहा भी आप इधर आ जाइए, हम आपको हमारी आर्मी में बहुत बड़ा पद दे देते हैं, तो उन्होंने कहा था भैया कि मेरा हिंदुस्तान मेरे लिए सबसे अच्छा है और मैं वहीं रहूंगा। क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी को उस टाइम पे इतनी बड़ी आर्मी में पद देने पे भी उन्होंने अपने देश को सर्वोपरि रखा। तो मैं यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि अपने दिमाग में तो हिंदुस्तान को सर्वोपरि रखें, कड़ी मेहनत करें, और मेहनत करके जो भी भारत सरकार या जो भी राज्य सरकारें आपको सुविधा दे रही है उन सुविधाओं का भरपूर फायदा उठाएं, उसका मिसयूज नहीं करें और हमारे देश हिंदुस्तान के
दिए नीरज चोपड़ा की तरह। अन्य अभी एक ही मेडल आया है, अगले ओलंपिक में मैं चाहता हूँ कम से कम 10 मेडल हमारे देश के लिए आए। यही मैं इससे आज इस माध्यम के द्वारा एक संदेश देना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात कही सर। गोपाल सर, थैंक यू सो मच, आपने अपने व्यूज आज शेयर किए। शायद जाते जाते बस इतना ही हम कह सकते हैं कि जब तक वो तिरंगा यहाँ पर छाती पर नहीं लगता तब तक उसकी अहमियत किसी को पता नहीं चलती, और उसे कमाना पड़ता है, उस झंडे को कमाना पड़ता है। बात है, जो आपकी मेहनत जब तक रंग ला रही है तब तक ये सारी चीजें आप तक पहुंचती है, और उसके बाद भी आप इस एथलीट की दुनिया से, इस इंडस्ट्री से किस तरह से जुड़ सकते हैं, उसका एक हमारे पास बहुत प्यारा सा उदाहरण गोपाल जी के जरिए है ही। And thank you so much, Supriya ji, for this great initiative of Sports Indie. This world of sports is just going to grow. It is just a start, that is, as I said. And in the starting, I said, this is the 25th episode. So we are just celebrating the Silver Jubilee. There's still a long, long way to go. And this is just the start. And thank you so much to all our viewers who have joined in for this special occasion for today. Next Saturday, one more person who's going to be there along with us, who would share their views and everything about the sports industry. We'll meet soon. As I said, next Saturday is going to be more interesting. So do tune in next week for this today's session. Thank you so much, Gopal sir. Thank you so much, Supriya ma'am, for joining in. मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले शनिवार. Till then, on behalf of Sports Indie and produced by Meeti Group, World of Sports is always open for everybody. At the end of the day, this is Vineet Dev signing off from here. Thank you so much. Take care. Thank you.